Okay. Let's wait for some more minutes. Yes, sure. Yeah, let's wait for 1 or 2 more minutes. During my conversation with Bishay, if you have any question, then you can raise your hand and I will unmute you. Still people are coming, so let's wait for 1 more minute. It will be good if everyone joins on time as okay, so we'll be starting at exact 4:35.
या हाँ, विषय सुनाई दे रहा है क्या? हाँ सुनाई दे रहा है मुझको। अच्छा अच्छा, तो क्या करें, मतलब टोटल शायद 9 है यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है, यू हाँ कैन स्टार्ट। हाँ हाँ, स्टार्ट, ओके ओके, स्टार्ट, ओके ओके, या someone is saying start. Okay, yeah, so yeah, let's on the video for the starting few minutes, and then okay, everyone wants to see that who is Vishajan actually, so getting curious. Yeah, so yeah, this is him actually. My okay, so childhood friend, in fact, since class 4, and गुड इवनिंग एवरीवन। yeah, so everyone, good evening, all those present here. Still, okay, या some are coming. Okay, okay, so yeah, first of all, yeah, let's tell me something about Vishay. And like as I told that I and him has been friends since, I mean, classmates and friend both since class 4, and it's been long. And from 4 to 10, we have spent together in same school. And, so lot of memories actually, and both on the field and academics, and everywhere actually. Good competition actually. So yeah, it's nice to have him here, and it's been long since I have had a conversation with him, and it's a great opportunity for our college student actually to present in this conversation. Okay, yeah, इट इज अ so प्लेजर टू बी हियर। huh? इट इज अ प्लेजर। Oh yeah. Actually, it's very good to have you actually, since you are busy having internship actually. Uh, ना ना ऐसा नहीं है, वो बस अब चल रहा है तो करना है। अच्छा 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 अच्छा, तो अभी भी लोग आ रहे हैं मतलब, हाँ 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 ठीक है, आने दे, बीच में ज्वाइन कर हाँ लूंगा। हाँ हाँ, बीच में ऐसे बात करते रहते हैं, बाद में स्लाइड ऑन करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना बस। हाँ हाँ हाँ। वैसे भी जानते हैं। हेलो विषय, you are not audible, I guess. विषय, we just wait, I guess he's got disconnected, just wait for a couple of minutes.
तो ओवरऑल हाँ हाँ या विषय इज बैक या और एक बात ऐसे बोलना चाहता हूँ हाँ विषय हेलो हाँ आई एम सॉरी हाँ बोल। हाँ ऑडिबल हो गया अभी हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है मतलब बाहर से जैसे लोग आते हैं कि जैसे ऑफिशियल टाइप का मीटिंग होता है मतलब तो हाँ I mean, everyone should be comfortable enough. I mean, to ask question. I mean, it's like friendly conversation. There's nothing as official or something else, and you can ask full doubt जितना भी है जो है मतलब दिमाग में जितना एम्बिग्युइटीज क्वेरीज जितना है बिंदास मतलब पूछ सकते हो या फिर हाँ, बिल्कुल यार, मतलब मैं ऐसा कोई सीनियर वीनियर भी नहीं हूँ, तुम्हारे कॉलेज का भी नहीं हूँ। एकदम साथ का हूँ, बराबर का हूँ। वही जो वही चाहे वो पूछ सकते हो, और ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है मैं आंसर कर भी पाऊँ या ना कर पाऊँ, बट पूछना चाहिए, पूछना तो हक है भाई। हाँ हाँ तो या विषय इवन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जस्ट हाँ, मैंने कहाँ तक पहुंचा था मैं भूल ही। हाँ, तो आई वाज सेइंग आई एम करेंटली परसुइंग एन इंटर्नशिप विद एक्सेला एडवाइजरी। मुस्तफा, हाँ हाँ सुन रहा है ना? हाँ 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 अच्छा सुनाई मैं दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है हाँ तो Am I audible to everyone? I mean, if I'm not, then you can raise your hand. या प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑडिबल है कि नहीं वहां से क्योंकि नेटवर्क इशू है मेरे को लग रहा है तो कैन यू प्लीज इन द चैट बॉक्स कैन यू राइट okay he is audible okay some more are coming with this okay Okay, okay okay, thank you. okay so yeah so okay the man you are sitting in the left he is none other than a student of Indian Institute of Technology Dhanbad and in which many students aspire to get in IIT. So he's one of here sitting just among us. It's a great and honor to have him with him, and no, it's actually it's a pride for us actually to have you among our students. It's not, बाप रे बाप, इतना कौन चढ़ाता है भाई? Okay. बस यार, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट लाइक यू. आई एम जस्ट इन अ डिफरेंट कॉलेज एंड आई एम आल्सो परस्यूइंग इंजीनियरिंग एज ऑल ऑफ यू, in computer science and engineering, bachelor of technology, all the same things. और ऐसा ही टाइप का इंट्रो तुमको सीनियर के सामने देना पड़ता है रैगिंग के दौरान हमारे इधर. हाँ हाँ ये दैट विषय आई एम और विषय. हाँ हाँ और एक बात मतलब क्योंकि हम लोग का हाँ मतलब यहाँ पे हाँ क्योंकि हम लोग ही सीनियर है मतलब तो हाँ. इतना वो मतलब मिला नहीं मतलब सीनियर तो रैगिंग का मतलब जो है एक्सपोजर नहीं मिला मतलब क्या है अच्छा, तुम लोग के उधर नहीं होता है क्या? मतलब हम ही सीनियर थे मतलब तू तो जब आया तब थोड़ी था सीनियर. हाँ हाँ डायरेक्ट सीनियर बन के घुसा ना हम लोग फर्स्ट अच्छा वो थे अच्छा अच्छा अच्छा. फर्स्ट फर्स्ट अच्छा बैच थे तब, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, तब तो नहीं मिला होगा यार. हाँ मजा हाँ आता, हाँ रैगिंग दे के भी मजा आता, लेके भी मजा आता. वही वही एक बार शायद तेरे को फर्स्ट सेम में शायद फोन किया था फिर बोल रहा था मतलब अ, हाँ हाँ हाँ, याद है मेरे हाँ को. हाँ हाँ कॉलेज में ही था मैं अभी, एकदम शुरू शुरू में. एकदम शुरू के 2-3 महीने थोड़े डरे हुए रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा. अच्छा उसके बाद थोड़ा चिल आउट हो जाते हैं. अच्छा अच्छा हम्म. अच्छा और हाँ, तो हम लोग को पहले चीज सीनियर यही सिखाते हैं कि सीनियर के सामने जाओ तो सर झुका के अपना इंट्रो कैसे देना है. अच्छा 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 तो इतने बार दिया इंट्रो, बाप रे बाप, भूल जा. अच्छा बस ये 4 लाइन, अपना नाम, ब्रांच, कहाँ से हो, और ये हॉबी, ये बताना पड़ता है शुरू में. आई एम बिशय जैन. आई एम करेंटली परस्यूइंग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. आई एम फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद एंड आई एम फ्रॉम गुवाहाटी असम. बस खत्म. अच्छा तब तो याद हो गया होगा मतलब जितना हाँ भाई, अब तो सुन सुन के औरों के ले लेके कितना कर लिया, क्या हो गया भाई. अच्छा 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 तो अभी तुम लोग लेते हो कि नहीं मतलब जूनियर को या लेते हैं भाई, लेना भी जरूरी है, सबको सीखना चाहिए. अच्छा हाँ वो भी है मतलब थोड़ा ये नहीं, मतलब इट्स
नॉट वेरी एक एक्सटेंसिव रहे हैं, हाँ हाँ मतलब मतलब एकदम जस्ट ज्यादा हाथ वाथ नहीं उठाना, जस्ट वर्बल, जो अच्छा बोल हाँ बोल के इंट्रोडक्शन लेके उनको सिखा के थोड़ा डिसिप्लिन में रह के, और हम्म, सीनियर को सर बोलना पड़ता है, सर मैम एंड ऑल, सिंपल हम्म, रैगिंग मैन। हम्म, या तुम लोग लेते मतलब हो कि नहीं, अभी सीनियर हो गए तो? अरे बाकी लोग शायद लेते हैं मतलब हाँ मैं तुम तो यार सिंसियर बच्चा स्कूल से। अबे कहाँ यार ही इज द मोस्ट सिंसियर गाय यू कैन एवर मीट मैन। नो 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 दिस इज हाँ भाई, ये मतलब ही इज वेरी विजनरी, ही इज वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ। फिर इसको सब पता होता है ये इससे क्या करना है आगे, ही नोज व्हाट टू डू, एंड एकदम सब कुछ प्लान रहता है इसका। शुरू से ही ऐसा है ये। और मैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास कुछ है तुम लोग के साथ शेयर करने के लिए, मैं बस मुस्तफा ने मेरे को बोला कि करते हैं थोड़ा मजा आएगा, तो मैं बोला ठीक है कर लेंगे, और मैं जानता हूँ ये संभाल लेगा इधर जो भी होगा। अच्छा 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 तो अभी या तो जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे है तो उन लोग का मैं या just we'll be starting this one also presentation also we have just we'll have some more conversation and then we'll start the presentation and you can I mean get the full I mean outlook about him since his school till his fourth year and PPT is made well and we'll start it soon till now we'll just 1 or 2 minutes we'll have some conversation and we'll start आई थिंक मुस्तफा, हाँ हाँ ज्यादा कर लोग हैं नहीं तो वी कैन गो अराउंड द रूम एंड आस्क एवरीवन टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इट वोंट टेक लॉन्ग। अच्छा बस नाम वाम बता दे और ईयर बता दे। अच्छा 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 उसके एक काम करते हैं मतलब क्वेश्चन के दौरान ही मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं या हाँ 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 हाँ, तब अगर बेटर किसी को होगा कुछ पूछना हो तो वो अपने अपने आप को हाँ हाँ इंट्रोड्यूस कर हाँ दे। yeah and yeah it will be better if everyone something or the other I mean small or something you can clarify I mean, anything you can ask it's हाँ not भाई, that you know पूछना ही तो कि बस स्कूल या का। टेक्निकल क्वेश्चन होना होगा ये वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है हाँ, कुछ भी मतलब कुछ भी पूछ सकते हो, कैसा भी कुछ भी पूछना हो। हाँ तो अच्छा विषय काम करते हैं कि वो प्रेजेंटेशन का स्टार्ट से थोड़ा सा वो कर देते हैं उसके बाद फिर और एक बार वो करेंगे हाँ ठीक है। हाँ पहले पीपीटी थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्टिंग से हाँ इट्स फाइन। ओके वीडियो मैं बंद कर देता हूँ हाँ थोड़ा और। कि चलने दो, तू बता। थोड़ा टाइम चलने दो फिर हाँ, ठीक है, ओके। ओके slide is this slide visible uh, is this slide visible विषय visible है क्या slide हाँ हाँ मेरे को तो दिख रहा है, हाँ मासूम yeah को भी दिख रहा है। okay yeah you can use the chat box you can raise your hand if anyone is having any query or something at an instant you can raise your hand so that I can unmute you हाँ, एनीथिंग टू आस्क एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन रेज योर हैंड। या सो या ये एक्चुअली सबसे पहले तो स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि कल क्या हुआ मीन्स कल जैसे विषय को मैं फोन किया फिर बोला कि अच्छा चलो ये तो मजा आएगा मतलब एक एक्सपोजर टाइप का होगा कि एक जैसे ऑनलाइन मतलब लाइव सेशन एक रख लेते हैं ये ऐसे ऐसे मतलब बैठे हैं मतलब घर में क्या है मतलब थोड़ा मतलब एक्सपोजर टाइप का हो जाएगा तो कन्वर्सेशन भी हो जाएगा मतलब एक्सपीरियंस शेयरिंग भी हो जाएगा नॉलेज गैदरिंग भी हो जाएगा तो एक ही सेशन में इतना सब कुछ मिल रहा है फिर व्हाई नॉट okay so this is the yeah open conversation and with Bishel non other Bishel so yeah this is a interactive session है तो जैसा आप जानते हैं he is Bishel is from IIT Dhanbad and CSE 6 and it's actually me as a host and then we'll quickly go to the first slide and in between you can if you have any queries you can just raise your hand so that अच्छा और कोई आए क्या मैं देख लेता हूँ just
हाँ ओके सो या एकदम ग्रास रूट से मैं मतलब स्टार्ट करना चाहता हूँ जैसे इसकी मैं बैक इन ईयर 2008 आई गेस class 4 या actually it was लॉन्ग टाइम अगो long time quite long time ago and yeah the environment was different at that time and I joined in St. Clair's at class 4 and Bishu was already there and अच्छा तुम कब से थे मतलब मैं क्लास 1 से अच्छा अच्छा 1 से थे तब तो अच्छा तब मैं ज्वाइन किया 4 में अच्छा सेंट क्लेयर्स में तो स्टार्टिंग से जो था मतलब ही वाज लाइक विजय वाज आई मीन कॉम्पिटिटिव आई मीन देयर वाज अ हेल्दी कंपटीशन आई मीन इन आवर क्लास तो एक्चुअली या विजय वो हाँ हाँ वो शायद यूनिक था शायद हाँ हाँ क्या एक्चुअली इट वाज यूनिक आई गेस शायद यूनिक था वो हाँ हाँ और मतलब मुस्तफा जब आया ही वो शुरू से ही मतलब फोकस था एकदम मतलब उसको पता था उसको क्या करना है और आते ही ही वाज लाइक यू नो द स्मार्ट गाय इन द स्कूल हु यूज्ड टू आस्क टीचर क्वेश्चंस और सब्जेक्ट साइंस चल रहा है जो चैप्टर चल रहा है बस उसके ही क्वेश्चंस नहीं उसके अलावा भी क्वेश्चंस टीचर को घुमाने वाले क्वेश्चंस कभी कभी जानबूझ के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस he was always you know interactive with the teacher and he used to know more and more grasp more and more knowledge always अच्छा अच्छा yeah it was back actually and okay, yeah, it was, and yeah, 4, 5, 6, it were good. Actually, 4, I guess we both were in. There was section was divided, I guess. So, मासूम बोल रहा है still the same in college no, अच्छा अच्छा ऐसा I know क्या? you won't change man you won't change No, no, no. inert guy अच्छा okay चैट okay बॉक्स अच्छा यहाँ पे मेरा कहाँ है? chat अच्छा box में लिख रहा है भाई वो हाँ अच्छा यार अच्छा ये मतलब हमेशा ही क्यूरियोसिटी मतलब कुछ ना कुछ जानना ही है कुछ नया करना है आगे बढ़ना है और शुरू में मतलब हमारा एक था ही कि ऐसे ही कुछ लोग के साथ कंपटीशन चल ही रहा है और ये आते ही सीधा डाइव कर गया कि इसे फर्स्ट ही आना है क्लास में बाप रे बाप जब आया ये तब सेक्शन हुआ नहीं था फोर्थ में आया था उसके आधे साल बाद सेक्शन में स्प्रेड हुआ था ये दूसरे सेक्शन में चला गया था मैं दूसरे सेक्शन में चला गया था and we still used to have competition like marks competition then fourth में तो इतना sports खेलते नहीं थे हम मतलब ऐसे हाँ स्पोर्ट्स पीरियड में खेलते थे और ऐसे ही हेल्दी कंपटीशन बढ़ता गया he used to push me I used to push him वो ऐसा नहीं कि हम मतलब लड़ रहे हैं पुश करने के लिए yeah, it's बस like दूसरा healthy, बंदा yeah. आता था मार्क्स आता था एंड फिर क्लास 6 में रीयूनाइट हुआ था सेक्शंस टूट गए थे एंड तब हम वापस आ गए थे और ये अपने सेक्शन में टॉप कर रहा था मैं अपने सेक्शन में टॉप कर रहा था उस समय फिर आगे बढ़े और इधर क्लास 6 में रीयूनाइट हो गए थे फिर उसके बाद भी कभी ये कभी मैं ऑलवेज इट हैज And बीन द सेम yeah, and विषय ये लेकिन एक मतलब यूनिक वो है कि मतलब हाँ हाँ जैसे बिल्कुल मैं और तुम मतलब 1 2 जैसे कोई मतलब ऐसा शायद शायद हाँ ही हाँ वो मिल शायद ही मतलब for हाँ सही 7 बात है सही बात yeah 7 long year I mean unique and yeah that environment was different at that time and तो उस हिसाब से मतलब and एंड हाँ बोल yeah so yeah I guess the audience they know okay. So yeah, we spent 7 long years at school with exciting competition. Now another thing, exciting competition doesn't mean here that rivalry type या कुछ वैसा कुछ हो गया just. It's like full healthy. I mean, एंड वी वर लाइक क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ऑफ दैट टाइम मतलब हम लोग आपस में ही खेलते थे आपस में ही कहीं भी जाना हो आपस में ही करना है ये वो सब कुछ yeah, मतलब yeah, ऐसा नहीं है and कि हम एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं we yeah, were very close friends and we have been since then and क्लास और कंपटीशन बस पढ़ाई में ही नहीं था बाकी हाँ लाइक हाँ क्लास 8 9 10 में जब अब फुटबॉल में आए हाँ तो क्रिकेट में फुटबॉल में बास्केटबॉल में मतलब स्पोर्ट्स में ये हाँ हाँ दूसरे रेड हाउस का था हाउस मैं दूसरे हाउस का था हाँ हाँ रेड और मैं ग्रीन ग्रीन हाँ हाउस का हाँ था हाँ तो ही यूज टू लीड हिज हाउस जब हम 10 में आए आई यूज टू लीड माय हाउस उधर भी अलग कंपटीशन चल रहा है
मतलब we have been competing all around. We used to be very playful. I mean, हम लोग बहुत खेलते थे स्पोर्ट्स वगैरह. आज मेरे को देख के उतना लगेगा नहीं बट मैं बहुत खेला हूँ. नहीं, इनफैक्ट मेरे को देख के भी अभी नहीं लगेगा कि हाँ, तेरा भी थोड़ा बहुत पेट वेट निकल गया. नहीं, और वो मतलब फिर 10 तक तो या We were very playful man. पूरे 10 तक हर टाइम पे हम लोग का बोर्ड्स आ रहा था. उनने बोला था प्री बोर्ड के लिए तैयारी करने. हम क्लासेस बंक करके हम लोग वॉलीबॉल खेलने जाते थे क्लास 10 में. Okay, yeah. So this was the actually school life actually between us and some memories. So then there was the class 10 board exam and 2015 and me and him getting both 10 CGPA actually, and it was a memorable one actually. So अब मतलब खेल जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ खेल मतलब वो बाकी लोग जैसे समझते हैं मतलब. हाँ मतलब जो आउटलुक होता है, इनफैक्ट मैंने भी कई बार मतलब रिसर्च किया मतलब कि बाकी लोग जिस डायमेंशन से देखते हैं मतलब कि they actually compare I mean, and rather than one potential, I mean what they do, they compare and see, I mean ये दूसरा का कैसा वो हो रहा है मतलब फिर मैं कैसा हो रहा है. But once again, if I honestly this as I have found out in my this graduation years that it's better that we ourselves हमारा जो potential है we should I mean cultivate those. Everyone is unique, I mean, so it will give better results and just investing upon you yourself and not comparing with others. उसका कैसा ये वो मतलब that doesn't matter actually. So you should always I mean try to cultivate yourself. So these are some things which I learned in my graduation years actually, which I wanted to share. And in between, I will be sharing what I have learned. And obviously, Vishay is in line. And anyone can raise their hand in between if you have any issues. Yeah, we will continue. Okay, you can feel free to you can raise your hand. Okay, in later slides are also there. I guess you will be more accustomed to those slides. You will certainly raise hand to. Yeah, college life में जब आएंगे. अच्छा just wait. Unmute हो जा भाई. Just wait, I am unmuting you. Okay. Masum, can you please raise your hand? Okay. Hello. Yeah, you are audible. Yes, Masum. Yes, hello Vishay. Nice to meet you. Thank you. So it was quite thrilling story of you and Mustafa. So you can see. So I really enjoyed it. So Vishay, I would like to ask you. You are in which department? Computer science. Okay, CSE. computer science. Okay. Yeah. So if you can tell your journey up till now, from your first year to 6th sem, your journey in programming, and what are your interests and passion, etc. Masum, that is coming. Masum will just come in the slides. Yeah. Okay. Yeah. Anything else? Apart from that, I would like to ask if your next plan, how would you? Actually, like an interview question, I would like to ask, where do you see yourself in 7th sem and 8th sem, and after passing out from IIT? मासूम सारा क्वेश्चन जो है मैं पीपीटी में लास्ट स्लाइड में मेरे को ऐसा लग रहा है तुमने ही बनाया पीपीटी सारा देखना एग्जैक्ट क्वेश्चन तुमने जो पूछा सारा स्लाइड में. तू स्लाइड मेरे को भी नहीं दिखाया यार. क्वेश्चन मेरे को बता देता, मैं प्रिपेयर कर लेता. अच्छा मुस्तफा पूरा तैयारी करके आया है. हाँ भाई, ये मेरा इंटरव्यू लेगा इधर पे. मासूम you can on your this one, I mean if you want video just to, if you want. Oh no. Okay, yeah. You okay. can call it me. Yeah, no problem. You to continue. Okay, yeah. Okay, yeah. So in between you can So let's proceed. Anyone else?
wants to ask anything. I mean, not of the future कि मैं क्या करूँगा and all. Okay. तो लेट्स ओके नेक्स्ट हम प्रोसीड होते हैं. तो नेक्स्ट क्या था यहाँ पे? इंट्रोडक्शन हो गया, द जर्नी. ओके, तो यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट होता है. क्योंकि मेनली हम जैसे जानते हैं कि 10 के बाद जो है आपका मतलब करियर वो स्टार्ट हो जाता है. एवरीवन इज different fields, like some going to commerce, some going to humanities, some opting for science, and then those who are opting for science, whether they want to go to technical like medical engineering or general. So this is the basic trend which is followed in India. And okay, so the journey as usual, and but like as I said, यहाँ पे हाँ विषय को शायद यहाँ पे क्या हुआ, मेरा जो है यहाँ पे शायद विषय पता था क्या 10 के बाद जो यहाँ पे पोस्टिंग आ गया था ना. अच्छा, हाँ, सिलचर पर. हाँ 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 हाँ, तूने बताया था. हाँ हाँ हाँ. So here actually the point came, and from 11 like I was in this one Holy Cross and Silchar, and I did my HS from there. And yeah, Bishya, where he went, he along with 3 other friends. I mean, there were 5 friends who got, they're like full of competition. We had like 5 of our friends, and 5 जितने भी पास थे मतलब we got 10 point. And yeah, Bishya and along with 2 others then went to actually none other than, can you guess anyone? Yeah, मेरा वहाँ मतलब कोटा जाना भी एक ट्रेजेडी टाइप ही था मेरे लिए. क्योंकि यार देखो, ये मुस्तफा है और हमारा एक और कॉमन फ्रेंड जाहिरुल है. ये लोग थिंग्स प्लान करते हैं, मतलब ये लोग सोचते हैं कि क्या करना है, और बहुत अच्छा चीज है. मैं बहुत स्पॉन्टेनियस गाय हूँ यार. मेरे को क्लास 10 तक पता भी नहीं था कि कौन सा ब्रांच लेना है, साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है. मेरे को बस इतना पता था कि मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, मेरे को उसमें ही कुछ करना पड़ेगा आगे बढ़ के. नहीं तो कुछ नहीं होगा मेरा. और एक बात तुम एक बार बीच में बोला भी था कि बायोटेक्नोलॉजी ऐसा समथिंग लाइक, आई मीन. अरे वो तो बहुत ही फनी स्टोरी है यार. वो मतलब वो क्विज था ना, कोई क्या क्विज चल रहा था यार, याद नहीं मेरे को. कोई अपने लोग के स्कूल में कोई क्विज करा रहे थे, तो उनने बोला था. अच्छा 10 वाला क्या? हाँ, वोडाफोन वाला पता नहीं याद. अच्छा. नहीं, मैं ऑडियंस में था. तो वो पूछ रहे थे कि तुमको आगे जाके क्या बनना है, जितना ज्यादा यूनिक होगा उनको मैं चॉकलेट दूंगा या एक पेन का डब्बा दूंगा. अच्छा याद है. हाँ, तो अब मैं सोचा यूनिक बोलना है यार, अपने पास तो दिमाग में कुछ है नहीं, मेरे को चाहिए था वो पेन का डब्बा. तो मैंने सोचा बायोटेक्नोलॉजिस्ट, मैंने कहीं से सुना था, भास्कर से सुना था शायद थोड़े दिन पहले ही, कि वो क्या करते हैं ऐसा ऐसा. भास्कर था भी क्यूरियस, वो ये सब चीज जानता रहता था. तो मैंने सोचा यही बोल देते हैं. बोला, उनने पेन का डब्बा दे दिया. मेरा कोई दिमाग में था नहीं कि वो बनना है. अच्छा. हाँ. तो वही एक्चुअली क्लास 10 तक तो पता नहीं था कि क्या लूं, मैं डाउटफुल रहता था. और क्लास में भी सबसे पूछते थे कि तुमने क्या सोचा है आगे. क्लास 10 में सबसे पूछ रहे थे कि आगे क्या ब्रांच लेना है. मेरे पास था नहीं कुछ. मैं बोला पता नहीं मैम, आई एम नॉट श्योर, कॉमर्स लूं कि साइंस लूंगा. कॉमर्स में अगर मैथ्स में अकाउंटिंग कर ले आगे बढ़ जाएंगे, साइंस में मैथ्स है ही. फिर देन ही टोल्ड ना कि 2 और फ्रेंड्स के साथ हम कोटा गए. तो वो 2 फ्रेंड्स में से जाहिरुल ने मेरे को बताया कि कोटा जाने से ऐसा ऐसा होता है, वहाँ कोचिंग कराते हैं 2 साल तक. क्लास 12 के बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है. मुझे पता नहीं था एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में भी. तो ज्यादा बोल नहीं दिया उसने बताया. हाँ, ये वाला शायद ज्यादा बोल दिया एंट्रेंस. अरे कसम से मुझे नहीं पता था. सच बता रहा हूँ मैं. झूठ क्यों बोलूंगा यार. अच्छा. मेरे को नहीं पता था. और वो मेरे को समझाया उस समय सब पता चला कि जेई करके है. मुझे जेई का फुल फॉर्म नहीं पता था भाई. जेई करके एक एग्जाम होता है, उसका वो लोग क्लास 11-12 में तैयारी कराते हैं. उसके बाद अगर सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन हो जाता है, वो ऐसा रिसर्च करके आया था कि सिलेक्शन हो जाता है. तो मैं ज्यादा जानता नहीं था. उसने ऐसा ऐसा बोला, और उसके बाद आईआईटी मिलता है. फिर आईआईटी में पढ़ाई होती है. फिर आईआईटी में पढ़ाई होने के बाद बहुत अच्छा जॉब लग जाता है, पैकेज मिलता है. अच्छा. हाँ.
Yeah, मैं तो खुश actually, एकदम। yeah, actually हाँ he is बोल। telling it right because back it was 2014-15 actually. There was no net first of all. हाँ हाँ हाँ, हाँ, उस तो समय yeah, ज्यादा yeah. नेट और स्मार्टफोन का टाइम था नहीं। 14 15 हाँ, 14 15 एग्जैक्टली। हाँ तो वो बता रहा था, तो मैंने बोला हाँ ठीक है यार, इंटरेस्टिंग लग रहा है, कोटा जाना पड़ेगा। कोटा दूर है। फिर क्या हुआ, उसने नयन को कन्विंस कर दिया था। नयन ऑल्सो कॉमन फ्रेंड ऑफ आर्ट्स, वो भी हमारे साथ ही था, ये दोनों को भी 10 सीजी पे आया था। और उसने नयन को कन्विंस कर लिया था। उस समय रिजल्ट आया नहीं था एक्चुअली क्लास 10 का। मार्च मार्च में हमारे एग्जाम्स खत्म हुए थे, और मार्च में ही एग्जाम्स के दौरान वो लोग ये इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे। तो उसने नयन को कन्विंस कर दिया। नयन इज अ नेबर ऑफ माइन, ही लिव्स क्लोज टू मी, विजयनगर में हम रहते हैं। तो नयन के पापा आ गए मेरे घर, मेरे पापा को समझाने कि इसको कोटा भेज दो, ये पढ़ाई में भी अच्छा है, वहां जाके अच्छा हो जाएगा। और एक्चुअली हमारे घर के पास से एक दो जन गए हुए भी थे उस समय कोटा, और उनने मेरे पापा को कन्विंस किया, पापा को बताया समझाया। पापा ने मेरे से पूछा तू जाना चाहता है क्या। मैंने बोला यार ये लोग इंटरेस्टेड है, मैं भी चले जाऊंगा और क्या। और दो तीन लोग अपने खुद के दोस्त अगर रहेंगे अच्छा ही रहेगा। तो वही ऐसे करके कोटा का डिसाइड हो गया। और मार्च 17 या मार्च 19 को हमारा एग्जाम खत्म हुआ, और 28 मार्च को हम कोटा के लिए निकल चुके थे। द फर्स्ट बैच ऑफ वाइब्रेंट एकेडमी, आई स्टडीड इन वाइब्रेंट एकेडमी फॉर Okay, yeah. इंजीनियरिंग। We'll come to that. Yeah. हाँ तो ऐसे Okay. हमने डिसाइड किया कि Yeah. कोटा जाना है। तो कोटा चले गए ऐसे। ज्यादा कुछ Yeah. नहीं था, मतलब मेरे को तो पता भी नहीं था, मैंने कोई प्लान भी नहीं किया। मेरे दोस्त ने बोला, मैं बोला ठीक है अब चल देंगे। पापा को बोला, पापा ने बोला, मैंने बोला ठीक है। Yeah, it's very exciting here story. The journey basically the behind the scenes story actually. लोग तो मतलब फॉरवर्ड में देखते, मतलब ऊपर से देखते कि कैसा होता है, मतलब पीछे का वो हाँ है मतलब मतलब. ये होगा, सोचा होगा कोटा जाने का, चले जाते हैं कोटा, प्लान Yeah. होगा ऐसा कुछ था। हाँ. So yeah, we'll just move forward, and yeah, this is the move to Kota. Yeah, as Vijay said. So यहाँ पे जो है विजय, तो थोड़ा मतलब बताओ कि मतलब क्योंकि ये एक्चुअली मासूम वो भी जो है कोटा से ही था, मतलब तो अभी जो अच्छा। इंटरेक्ट किया. ओके, या विल टॉक टू हिम लेटर. या हम्म। सो तो मतलब बेसिकली कैसा था, मतलब कोचिंग एंड ऑल लाइक कंपटीशन सो एंड वाइब्रेंट कोचिंग एंड व्हाई यू चूज, लाइक बेसिकली लोग क्या करते हैं मतलब एलएन या कैरियर पॉइंट वैसा जैसे जाते हैं, मतलब जो रिनाउंड जैसे होते हैं अरे न्यूज़पेपर में जो देख लिया मतलब. हाँ सही बात है, मतलब एलन और करियर पॉइंट का ज्यादा नाम है, और मतलब इनने एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं ये। एक्चुअली वाइब्रेंट क्या है कि बंसल भी फेमस है, बंसल क्लासेस। और वाइब्रेंट का क्या है कि इसका जो कन्वर्जन वो है, रेट वो सबसे अच्छा है कोटा में। मतलब ऑलमोस्ट 50 to 60% क्लियर जेई मेंस, एंड ऑफ दैट 40% क्लियर जेई एडवांस। ये हमें बताया, एक मैंने कहा ना मेरे एक नेबर पहले से पढ़ रहा था, तो उसने बताया कि वाइब्रेंट इज द, और इसमें कोई मेडिकल नहीं है अलग से, मेडिकल के लिए प्रिपरेशन, बस ये इंजीनियरिंग का था उस समय, अब शायद चेंज हो गया होगा पता नहीं। और उस समय ये बस उसके लिए था, और उनने बोला था ये ज्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करते मेरे नेबर ने। और ये अच्छा है, एंड कन्वर्जन रिजल्ट अच्छा है। तो हमने सोचा व्हाई नॉट वाइब्रेंट, इसलिए हमने वाइब्रेंट लिया। एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ उधर पे, वो तो नाम के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, उनको लेना तो सबको, ये पैसे मिल रहे हैं उनको। तो हाँ उसमें हाँ. ज्यादा कुछ है नहीं। हम्म। Yeah, so yeah, that's another lesson actually यहाँ पे कि मतलब आप जो देखते हैं जैसे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट ये वो, मतलब डायरेक्टली जो आँख में देखते हैं मतलब वो देख के मतलब आप मतलब कंक्लूजन में ना आए. Better to just have couple of simple research or something like that. पूछताछ मतलब ये वो इंटेलिजेंट वर्क जिसको बोलते हैं. So that's what is important here. Okay, so yeah, so Vishay, you please explain your those 2 years actually. मैं तुम और एक बार पूछ चुका था तुमसे, तो यहाँ पे तुम 2 साल मतलब एग्जैक्टली तुम बताओ. तुम तो बोल दो ऐसे मतलब क्रैक हो गया या जो भी, तो एग्जैक्टली अरे मतलब क्या. अरे शुरू के महीने तो उतने वो नहीं थे, मतलब टेंशन वाले। बस घर से दूर गया था पहली बार, वो अलग टेंशन था बस।
और शुरू में प्रेशर उतना आया नहीं, शुरू के 2-3 महीने वो उतना मतलब बस वो जानने में लग गया अकेले रहना है। और ये लोग अपने दोस्त भी जाहिरुल नैन ये सब, आप वहाँ वहाँ क्या होता है यार, वहाँ एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ स्कूल लाइफ में क्या है कि हम बस 6 आवर्स के लिए 6 से 8 घंटे के लिए आपस में रहते हैं, उसमें भी कितनी देर पढ़ते हैं और बाकी टाइम जितने भी बातें करते हैं खेलते हैं। उधर पे सब सोच के जाते हैं कि हमें पढ़ना है, बस पढ़ना है। और तो ये लोग भी, हम लोग सभी आपस में मतलब कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो गया था और सब आपस में पढ़ने लग गए थे, मतलब सब अपना अपना पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो शुरू के 2 मंथ्स तो ऐसे ही निकल गए टाइम, मतलब मेरे को तो जाते ही चिकन पॉक्स हो गया था। मैं शुरू के कोचिंग के इनिशियल डेज क्लासेस नहीं जा पाया था 10 दिन। तो मैं इनसे पूछ रहा था बस क्या हो रहा है यार, मेरे को नया नया एक्सपीरियंस भी नहीं मिल रहा कि क्या मैंने क्या होता पहले है भी डाला लगा तो तुमने Yeah, Masin, please. oh Uh, yes sorry oh you can mute me hello yeah. Sorry. Yeah, I have muted you. Yeah. हाँ सो Okay. हाँ. इट वाज समथिंग लाइक दैट। फिर ऐसे आगे बढ़ा और फिर उसके बाद क्या हुआ यार, इट्स नॉट सो मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि फिर आगे यार क्या हुआ, इनने होमवर्क्स जो पढ़ाते थे इनका मतलब 4.5 आवर्स 5 आवर्स का क्लास होता था दिन का। एंड और कभी कभी ज्यादा, कभी 7 आवर्स, सुबह का शेड्यूल शाम का शेड्यूल जो भी होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ये अलग अलग पढ़ाते थे। और फिर ये बहुत सारा होमवर्क देते थे, शुरू में मैं कोप अप नहीं कर पाता था होमवर्क से। तो शुरू के कुछ दिनों मेरा फिजिक्स में बहुत लो स्कोर्स आ रहे थे, एक में तो 12 की आया था आउट ऑफ 75। मैं दिमाग खराब हो गया यार, इतना कम मार्क्स ऐसे थोड़ी होता है, कभी देखा ही नहीं जिंदगी में इतने कम मार्क्स। और फिर टेंशन आया हो गया, और ये बहुत होमवर्क देते थे हर सब्जेक्ट में। शुरू के दिनों में दिया नहीं और एक बार मैंने मतलब बच्चे के सर पे डम करने लग गए होमवर्क, इतना ज्यादा प्रेशर बाप रे। और फिर मैं सोचा यार मुझसे तो हो नहीं रहा, प्रेशर लेने लग गया। तो फिर थोड़ा डिग्रेड हुआ था शुरू के मंथ्स में, 5-6 महीने निकल गए अब। लेकिन फिर मैं सोचा यार अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने एक चीज सोची, जो पुराने होमवर्क है उसको एक बार छोड़ देते हैं, जो नहीं निपटा है अब से जो मिलेगा एकदम ऑन टाइम करना है। ऑन टाइम करना है, आज दिया है कल लेके चले जाना है, कल दिया है परसों लेके चले जाना है, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो वो जो भी होमवर्क देते थे मैं करता गया, प्रैक्टिस होती गई क्वेश्चंस के, एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने हैं, कैसे क्रैक करना है क्वेश्चन को, कैसे सोचना है, क्या लिखना है, क्या मार्क करना है। ये बस होमवर्क करते करते आ गया यार, मतलब अलग से ऐसा कुछ नहीं है मैंने कुछ किया, बस ये था कि आज आया हूँ क्लासेस से तो होमवर्क कंप्लीट करके कल जाना है। ये मेरे ऐसे ही निकले। और 11th के बाद मेरा अच्छा रहा, रैंक वैंक अच्छे आने लगे वहाँ के टेस्ट में, जो मैं वाइब्रेंट के टेस्ट होते थे, रैंक वैंक अच्छी आती थी। तो रीशफलिंग होती है बैचेस के, मैं ऊपर चढ़ने लगा। एंड इट वेंट ऑल गुड टिल 12th एज वेल। तो ऐसे ही चलता गया, होमवर्क करते जाओ, यही मंत्र है भाई। ज्यादा कोई अलग टेक्निक है नहीं, होमवर्क करते जाओ और टाइम टू टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि आप चीजों को पीछे छोड़ दो, अभी मिल रहा है अभी एक बार कर लो, अभी एक बार मिल रहा है कर लो, अभी ऐसे आप छोड़ते जाओगे ना कि कल करोगे तो फिर वो इतना पेंडिंग पड़ जाएगा, कभी कर नहीं पाओगे। तो ऐसा था मेरा तो। और 12th के बाद क्या हुआ कि ये दिसंबर में इनका खत्म हो जाता है कोचिंग क्लासेस, सो दे गिव अस 3 months टाइम टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। मतलब छुट्टी कर देते हैं कॉलेज की, कोचिंग की, और बोलते हैं कि प्रिपेयर करो। तो वो 3 महीने मैंने पूरे वेस्ट कर दिए यार, क्योंकि इनके तरफ से तो कोई होमवर्क था नहीं। इनकी तरफ से कोई होमवर्क था नहीं, इनने बोला प्रिपेयर करो। मैं क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता था। पिक्चर्स अच्छा. देखता था उधर, अच्छा, आप छोटा बीच मैं। में पढ़ाई छोड़ दिया था तुम बोल रहे थे मतलब. हाँ यार पढ़ाई वढ़ाई छूट गया था, वो वर्स्ट टाइम था मेरा, मतलब आई अच्छा. रिग्रेट इट टिल नाउ। मतलब अगर उसमें वो 3 महीने भी और पढ़ाई कर लेता तो यार और अच्छा रैंक मिलता, और अच्छी आईआईटी होती। बस अच्छा. ऐसे ही। लेकिन मेरे को पता था क्योंकि मेरी रैंक काफी अच्छी थी वहां पे, तो मुझे पता था मैं जेई मेंस तो निकाल ही लूंगा, आई वाज श्योर। सो या बोर्ड्स ओके. बोर्ड्स आ गए, क्लास 12 के बोर्ड्स आ गए। तो वो भी मैंने ज्यादा पढ़ाई किया नहीं, वो 2 दिन करके पढ़ा, क्योंकि देयर वाज नो इंक्लूजन ऑफ रैंक। वो रूल उस समय चेंज हुआ था कि जेई मेंस के रैंक में 12th का परसेंटेज काउंट नहीं होगा, यू जस्ट हैव टू सिक्योर 75% टू गेट एडमिशन इन आईआईटी। तो मैंने बस सोचा कि अपने को बस 75% लाना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है,
और Okay, yeah. दो So दो दिन पढ़ के सारे एग्जाम्स दे दिए मैंने 12th के। फिर वो भी मेरे को लगा अब 75 तो आ ही जाएगा और मेंस आ गया। फिर 10 दिन के बाद मेंस था शायद। अब मैं राजस्थान बोर्ड से था तो वो पहले खत्म हो जाता है, और फिर 10 दिन के बाद मेंस आ गया। मेंस से 4-5 दिन पहले मैंने एकदम एक्सटेंसिव रिवीजन शुरू कर दिया अच्छा, हाँ हाँ पूरे। हाँ, विषय, हाँ हाँ, okay, so ऑडिबल राइट? सुनाई yeah, दे रहा yeah, है ना? yeah, yeah, you are audible, yeah. Okay, so yeah, let me tell ki that he got that AI 2812, and finally he got this one selection at IIT Dhanbad. And okay, then here comes the start of the college life. Okay, so basically यहाँ से जो है जैसे कि टेक्निकल फील्ड में एंटर हो गए, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में एंटर हो गए, तो यहाँ से विल like discuss what was in the college life and all, what was in, when what was like hostel and all, and kaisa academics raha and all. So we'll discuss this, and this will be exciting. And just you keep your just patience. I guess this was the most waited for slide. एक्चुअली लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं, एक्चुअली मैं ज्यादा ही वो पहला वाला पार्ट ज्यादा ही वो कर दिया ये कोई बात नहीं, मतलब एक्चुअली जो तुम बोले, मतलब 11-12 का वो विषय, हाँ जैसे 11-12 मतलब इट इज कॉमन, एक्चुअली कॉमन फॉर एवरी लाइक एनी एग्जाम, हाँ, लाइक वही या वही मैं कह रहा या या सो था करना या है, कुछ करना है। इट्स लाइक कॉमन, इट्स नॉट दैट कि 11-12 में कि आप मतलब वो कि you don't have other chances. I mean, so there will be like other chances, and you can, I mean, crack those. And because a lot of people I see, I mean, they get demoralized and dejected and कि अच्छा ये नहीं हो पाया, अच्छा, लेकिन वैसा नहीं सोचना है कि लॉन्ग टर्म में देखना है, मतलब आपको भी मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी मतलब आगे जाके, तो इसीलिए जो है मतलब या सो दैट यू नीड टू, बिकॉज दैट्स व्हाई आई hanged in Bishay for those 2 years. Like how was that? Like I mean, those 2 years, like you were in HS. Like it can be any later stage also for anyone. Like, and they can be where they can. I mean, preparation जो है वैसा बाद में भी मतलब आ सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो एक्चुअली मंत्रा वही है, मतलब जो जैसा विषय बताया, मतलब तो उसी मंत्रा जो है वहाँ पे भी जब अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे मतलब वैसे ही करें। So yeah, Vishal, like let us start with this one, IIT life, IIT Dhanbad life. So first year you can go on. So हाँ, आईआईटी for धनबाद। first year yeah, after getting admitted क्या हुआ मतलब? हाँ अरे यार हम तो यही सीख के आते हैं यार शुरू में कि 12 पास करोगे आईआईटी मिल जाएगा, मौज ही मौज है तो यही सोच के आ गया, आईआईटी आ गई, मौज है अपने। अच्छा तो तो शुरू में तो यही, लेकिन यही चल रहा था। फर्स्ट ईयर में हाँ वी वर फर्स्ट सेम में, लर्निंग हाँ थिंग्स अबाउट ओके, केसेस। फर्स्ट सेम में शुरू के 3 महीने तो हमें सीनियर से बचाने में इनके लग गए, हमें लॉकडाउन में रखते थे। ऐसा ही था, क्लास हॉस्टल से सीधा क्लास, क्लास से सीधा हॉस्टल, फिर वहां के लोग सीनियर उस हॉस्टल में आ नहीं पाएंगे, समथिंग लाइक दैट। एंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वो तो कॉमन होती है सारी सब्जेक्ट्स, सो इट वाज नॉट दैट आई हैव टू स्टार्ट स्टडिंग डिफरेंटली। और आई डिड नॉट प्लान अ लॉट। मैंने कोडिंग फर्स्ट ईयर में ज्यादा की नहीं है, अगर जो लोग कर लेते हैं वो बहुत आगे निकल लेते हैं। सो इट्स द बेस्ट दैट यू स्टार्ट कोडिंग व्हेनेवर यू गेट इनटू द कॉलेज। फर्स्ट ईयर में हो तो यार अभी से कोडिंग शुरू कर दो, अगर ब्रांच तुम्हारी कोडिंग रिलेटेड है और तुम यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन दैट। एंड मैंने उतनी कोडिंग की नहीं, मुझे आती भी नहीं थी, हमारे स्कूल करिकुलम में थी नहीं क्लास 10 तक सी या सी प्लस प्लस। 11-12 मैंने कोचिंग में की, तो वो तो सिखाएंगे नहीं। तो कोडिंग करना यार बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना जल्दी कोडिंग करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव कोडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब आप कहीं भी किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे तो आपको पहले उनका ऑनलाइन टेस्ट पास करना पड़ेगा। ऑनलाइन टेस्ट में आएगा 2 या 3 कोडिंग क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव कोडिंग लेवल के, सो विच विल कवर डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ कोडिंग। एंड वो अगर आप क्लियर कर लो तो इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू में आपको कोडिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछेंगे, सब कुछ। इट्स बेसिकली मतलब हमारे ब्रांचेस के लिए सीएससी ईसी, अगर यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज, आईटी कंपनीज, तो आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। और जितना जल्दी आप स्टार्ट कर लोगे उतना ज्यादा एज रहेगा आपका ओवर अदर्स। कंपटीशन कम होता जाएगा, यू विल क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज देन देम।
कि मेरा इतने सारे कंपनीज में सिलेक्शन हुआ, उसका थोड़े कम में हुआ। जो जितना जल्दी कोडिंग करेगा, मेरा एक फ्रेंड है, उसने वो 11th-12th से कोडिंग करता है एंड ही इज द बेस्ट कोडर ऑफ आवर कॉलेज। वो अभी उसका माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न लगा था, उसका सेकेंड ईयर में ही सैमसंग में इंटर्न लग चुका था और उसने सैमसंग में इंटर्न करी। फिर थर्ड ईयर में अभी माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न कर रहा है एंड आई एम प्रीटी श्योर उसको पीपीओ मिल जाएगा क्योंकि हु वोंट वांट हिम। और पता नहीं वो उतना ज्यादा सोचता नहीं, वो चाहे तो यार अलग अलग लेवल के कोडिंग कॉम्पिटिशन छोड़ दे, वो तो बस दिखता है कैंपस में जो आ रहा है उसी से ले लेते हैं। अगर वो ऑफ कैंपस ट्राई करे तो ही कैन डू टेरिबली वेल। एंड तो मेन यही है यार, कोडिंग करो शुरू से ही, फर्स्ट ईयर से। मैंने करी नहीं फर्स्ट ईयर में, मैंने सेकंड ईयर के सेकंड थर्ड सेम में मैंने स्टार्ट करा, जब हमारा ब्रांच मतलब एकदम ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आने लगे तो ऊप्स पढ़ने लगा एंड थिंग्स लाइक दैट। वो भी ऐसा नहीं कि बहुत एक्सटेंसिवली मैं कोडिंग कर रहा था, बस मुझे पता था कि कोडिंग करना पड़ेगा, तो क्लासेस से आया 1 घंटा कभी कोडिंग कर लिया, कभी 2 घंटा 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए दिन के, ऐसे ऐसे करके। सेकंड ईयर में तो, और थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में इंटर्नशिप की कंपनीज आती है। मैं पता नहीं फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर पहुंच गया, लेकिन मेन पार्ट यही है लेकिन कि कोडिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू। एंड जितना ज्यादा आप करोगे, प्रोजेक्ट्स करोगे, उतना आपको एज मिलेगा सबके सामने। मुस्तफा, हाँ यू वांट हाँ टू या वेन, कुछ बोलना है देखो? और नहीं नहीं या okay actually since you are talking about codings and also I'm just actually और participant जो है I'm just trying to gather them actually as much possible. Okay yeah you can talk about professors and all. I mean कैसा है मतलब various professors I mean, how प्रोफेसर they तो यार सच में देयर आर नो, प्रोफेसर पे आप डिपेंडेंट होके कॉलेज में नहीं पढ़ाई कर सकते या जॉब के लिए नहीं एस्पायर कर सकते। इट इज लाइक दैट ओवर हियर। आई डोंट नो अबाउट योर yeah प्लेस। no no it's आप universal actually yeah okay हाँ वही तो, प्रोफेसर्स आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और सब्जेक्ट्स, पता नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि ये सब्जेक्ट्स जो पढ़ाते हैं इनका बस थोड़ा सा काम है, इनपुट है। इनके अलावा आपको अलग से खुद करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। वो प्रोफेसर पढ़ाएंगे, उन्हें उतना इंटरेस्ट भी नहीं है यार। हमारा बैच स्ट्रेंथ है 180 व्हेन इट कम्स टू सीएसई, 150 इन बीटेक एंड 150 प्लस 30 इन डुअल डिग्री बीटेक प्लस एमटेक। सो हम लोगों का क्लास साथ में होता है, तो 180 का स्टूडेंट स्ट्रेंथ है। प्रोफेसर अब किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट पे तो ध्यान दे नहीं सकता, एक एक करके पूछ नहीं सकता है तेरा लाइफ कैसा चल रहा है या तेरा कुछ क्या हो रहा है। तो यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन प्रोफेसर्स। तो ऐसा नहीं है, प्रोफेसर ठीक है यार, कुछ कुछ पढ़ा देते हैं ठीक से, कुछ कुछ को बस अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कुछ कुछ को बच्चों की लेनी है, मतलब yeah एक्सपेंसिव, ये असाइनमेंट दे दो, वो असाइनमेंट दे दो, अभी के yeah अभी दे yeah दो, yeah नहीं yeah दिया तुम फेल, तुम्हारा समर सेमेस्टर, तुम्हारा बैक लगा देंगे। हर जगह yeah वैसा ही होगा शायद प्रोफेसर। तो यार सेम है पूरा इंडिया में सेम है क्या शायद बताओ। वैसे। हाँ यार, ये तो आईआईटी में ऐसा कुछ अलग नहीं है कि प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको कोडिंग सिखा रहे हैं। कोडिंग आपको खुद ही करनी है। प्रैक्टिकल होंगे थोड़े बहुत, वो भी बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब उस पर डिपेंड करके आप इंटरव्यू देने चले जाओ तो खत्म, आपका कुछ नहीं हो रहा। ओके ऐसा ही है यार। तो अच्छा तो एंड मतलब हाँ फर्स्ट ईयर पे तो मैंने कोडिंग करी नहीं। हाँ अच्छा बोल। हाँ अच्छा किसी को अगर anyone having like any queries like first year like everyone has already passed uh, any queries I mean you can raise your hand or I just unmute so that you can ask like anything related to coding and all and any stuff like companies okay तो अच्छा कैंपस कैसा कैसा है मतलब मस्त कैंपस बहुत सुंदर है यार हमारे इधर का, मतलब ग्रीनरी बहुत है एंड इट इज ऑन द सेंटर ऑफ द सिटी धनबाद में, अच्छा उसके हाँ अराउंड हाँ सिटी रिवॉल्व करता है। अच्छा और वैसे ही ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं कॉलेज से निकलने की, बहुत बड़ा कॉलेज है, मतलब ठीक ठाक अच्छा कॉलेज है उधर ही सब कुछ हो जाता है। एंड अच्छा कॉलेज सुंदर है, कॉलेज के लोग सुंदर है अच्छा अच्छा तो अच्छा सब कैसा बढ़िया है। एक्सपोज हाँ हाँ ओके एक्सपोजर अच्छा ही है हाँ ओके
Okay, so let's okay लोग let's पूरे इंडिया से आते हैं, तो बढ़िया यार, हाँ घुलने मिलने मिलता है। हाँ that's the main thing actually. Okay, so let's move about the second and third year part. तो हाँ विषय मतलब सेकंड थर्ड ईयर में एक सेकंड मासूम ने कुछ क्वेश्चन पूछा। Would like to know your ratings in different platforms. Like to know your Okay. ratings in अच्छा अच्छा मींस मासूम भाई कोडर रखे हैं। हाँ समझ गया मैं यार कोड फोर्सेस में ज्यादा कोडिंग करता हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव कोड कॉम्पिटिशंस कोड फोर्सेस में देता हूँ। कोड शेफ में देता था शुरू में क्लास सेकंड ईयर के एंड तक, उसके बाद से मैंने दी नहीं है। एज फार एज आई रिमेम्बर उसमें 1800 कुछ है, 1890 या 1880 कुछ होगा कोड शेफ में। एंड कोड फोर्सेस में मैं अभी करता हूँ कभी कभी। अभी तो इंटर्नशिप चल रही है तो बहुत कम कर पाता हूँ, लेकिन जब तक देता था तो लास्ट मैंने थोड़े दिन पहले दिया था वैसे। इट्स 1813 और 1803 समथिंग लाइक दैट इन कोड फोर्सेस। ऐसा नहीं है मैं बहुत हार्ड कोडर हूँ, इतना ही एवरेज ही है यार, और इतना चाहिए नॉर्मल जॉब कंपनी मिलने, नॉर्मल कंपनी में जॉब मिलने के लिए। yeah he's correct actually. Yeah, it need not to be, I mean, extraordinary something like that. Yeah. हाँ एवरेज से ही मतलब you can मैंने कुछ yeah. छोड़ा नहीं है कोडिंग में, ज्यादा कोडिंग करी भी नहीं है बस सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत करा है, और उससे इतना पहुंच गया हूँ, और इतना काफी आई थिंक। कुछ लोग हैं यार हमारे कॉलेज में 2200 2100। मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, वो अभी मतलब वो रेगुलर देता है, वो डुअल डिग्री में है। ही इज एट 2100 समथिंग, सारांश करके। यू कैन चेक आउट द यू मीन आर यूजर हैंडल्स इफ यू वांट टू। सारांश 12 ऐसा कुछ है उसका। मेरा है जैन विषय। बस जैन आ गया, विषय बाद में, ज्यादा कुछ अलग नहीं कोड फोर्सेस। एंड एक्चुअली इंटरव्यू के लिए आपको ये पार्ट तो इम्पोर्टेंट है कि आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग सीख लो और ऑनलाइन टेस्ट क्रैक कर लो, लेकिन इंटरव्यू का टाइम जब आता है, व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू फेस टू फेस वन with the interviewers, they ask most common questions और different topics। वो सारे क्वेश्चन आपको लीड कोड में मिल जाएंगे, इंटरव्यू बिट में मिल जाएंगे, एंड हैकर में थोड़े हाई लेवल के मिलेंगे, लेकिन वो कर लोगे, हैकर वाले कर लोगे तो आपका और एक एज आ जाएगा उनके सामने, बाकियों के सामने। और लेकिन लीड कोड एंड इंटरव्यू बिट आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू लर्न ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस द इंटरव्यूअर्स आस्क। मतलब मैंने थर्ड ईयर के, हमारे कॉलेज में क्या होता है, थर्ड ईयर के अगस्त में जब स्टार्ट होता है, अगस्त एंड तक फर्स्ट फेज ऑफ कंपनीज स्टार्ट अराइविंग, लाइक सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, और क्या क्या आती हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस, फिर सेल्स फोर्स, और क्या आती हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, और याद नहीं यार इतना, ये है शायद और ये आती हैं, इनका अगस्त में फर्स्ट फेज रहता है क्योंकि ये थोड़े हाईटेक कंपनीज हैं। तो मेन कोडिंग हमने उससे जस्ट पहले की, हम सारे डरे हुए थे क्या होगा क्या होगा। एंड उसके बाद उनका वो शुरू हो गया। मेरे पास ज्यादा कुछ प्रोजेक्ट था नहीं उस समय तक, मैंने कुछ किया नहीं था। एमएल सीखना बहुत जरूरी है यार। एमएल सीख लो तो एमएल एमएल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर तुम डीप लर्निंग कर लो, कोर्सेज कर लो, एक आध दो प्रोजेक्ट कर लो, सो इफ यू हैव दैट रिटन इन योर सीवी इट हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि इंटरव्यू का बेसिकली क्या सिस्टम है कि 1 घंटा होगा मैक्सिमम इंटरव्यू कोई भी कंपनी के लिए। मेरा कोडिंग ठीक था ऑनलाइन, मतलब कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो मैंने ऑलमोस्ट एवरी ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया था। माइक्रोसॉफ्ट का कर लिया, अमेजन, फ्लिपकार्ट, सैमसंग फर्स्ट फेज में, और आई वाज थ्रू टू द इंटरव्यू इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एक्चुअली मेरा फर्स्ट फेज में किसी भी इंटरव्यू में क्लियर नहीं हुआ। आई वाज वेरी बैड एट दैट। मैं यार इतना नर्वस हो गया था, पहला इंटरव्यू था मेरा सैमसंग का। उसमें तो यार मतलब मेरा अच्छा ही हुआ था इंटरव्यू, पता नहीं, लेकिन मैं शायद बहुत नर्वस था।
तो आई कुड नॉट गेट इट थ्रू। मेरे को लगा था हो जाएगा, लेकिन उनने इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे। टेक्निकल इंटरव्यू होता है इनका इंटर्नशिप के दौरान। देयर आर कुछ कंपनीज के 2 राउंड्स होते हैं, कुछ कंपनीज के 1 राउंड होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। जैसे सैमसंग का होता है 2 राउंड। फर्स्ट होता है, एक तो ऑनलाइन टेस्ट है, वो आपको क्लियर करने पड़ेगा। ऑनलाइन टेस्ट के लिए बेस्ट है कॉम्पिटिटिव कोडिंग। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना जल्दी आपका माइंड स्ट्राइक करेगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो आप जल्द से जल्द कर पाओगे तो क्लियर हो जाएगा। और सेकंड राउंड है उसका ग्रुप डिस्कशन। उसमें एक सैमसंग में उसमें एक वो क्वेश्चन देते हैं, सेम क्वेश्चन टू ग्रुप ऑफ 10 पीपल और 5 पीपल, whatever their range is, and फिर उनको सबको सॉल्व करना है। मतलब ऐसे नहीं कंप्यूटर में सॉल्व करना है, you have to solve it in a paper, piece of paper में अपना कोड लिखना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी है। और फिर जितना जल्दी हो जाए आपको अपना हाथ खड़ा कर देना है, एक इंटरव्यूअर वहां बैठा होगा, वो आपको बुला लेगा। सो सेकंड राउंड ये था। ये भी मेरा, उनने एक बेसिक क्वेश्चन पूछा था BFS का, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, आई होप यू नो। और वो मैंने सॉल्व कर लिया था फटाफट। मैं सेकंड में जाके मैंने दिखा दिया एंड आई क्लियर्ड दैट राउंड एज वेल। एंड थर्ड राउंड फेस टू फेस इंटरव्यू था, वो भी टेक्निकली था। उधर उधर फर्स्ट सैमसंग वाला तो मेरा अच्छा गया था। उन्हें एक्चुअली, मेरे पास ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं थे ऊप्स से रिलेटेड, मेरे पास 1-2 प्रोजेक्ट था। ML मुझे तब तक आती नहीं थी फर्स्ट फेज के दौरान। और मेरे को लगा, मैंने सीनियर से पूछा तो उन्होंने बोला अगर तेरी कोडिंग अच्छी है तो तेरे को उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैंने उनकी बात मान ली। तो मैंने ज्यादा कुछ प्रोजेक्ट में ध्यान दिया नहीं और मैं क्लियर कर गया था। फिर उधर सैमसंग के इंटरव्यू में इट वाज मोस्टली अबाउट टेक्निकल क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे पास ज्यादा प्रोजेक्ट था नहीं। तो मतलब क्या होता है यार, इंटरव्यू का स्लॉट होता है 1 घंटा फॉर एवरी स्टूडेंट। और सैमसंग इज अ मास रिक्रूटर इन आवर कंपनी, इन आवर कॉलेज। वो लेके जाती है कम से कम 20-25 स्टूडेंट्स फॉर इंटर्नशिप। एंड तो अब उसको 1-1 घंटा देना है सबको। तो अब वो अब क्या होता है कि अब आपके पास प्रोजेक्ट भी होगा अच्छा, तो आप यू कैन स्पेंड योर टाइम टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, इवन मोर देन दैट इफ इट्स एन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट प्रोजेक्ट। और जैसे आधा घंटा 45 मिनट। और प्रोजेक्ट के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सही ही बोलोगे, क्योंकि आप उसके बारे में पढ़ के जाओगे पूरा। और इसलिए क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट है तो इंटरव्यू का टाइम आपका स्लॉट में कट जाता है कि अब आपको प्रोजेक्ट के बारे में इतना देर आपने बात कर ली, अब बचा 15 मिनट या 20 मिनट। अब उसमें वो आपको टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेगा कोडिंग से रिलेटेड, कि ऐसा एक क्वेश्चन है डीपी का। डीपी नहीं बोलेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा जनरली, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मेरे पास ज्यादा प्रोजेक्ट था नहीं, मेरे 10 मिनट में सारे प्रोजेक्ट निपट गए, 10-15 मिनट में ऊप्स के। तो मेरे से लंबा वो टेक्निकल वाला राउंड चलता था कोडिंग का, जिसमें वो क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछते थे। तो क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दिया। अब वो बोलते थे ठीक है, इसको और तुम वो करो, क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम करो। तो ऑर्डर n स्क्वायर करा, ऑर्डर n करा। वो बोलते हैं इसका एक तरीका ऑर्डर log n भी है, अब आप करो। अब उतना तो आता नहीं है भाई यार, जितना नॉर्मल कोडिंग आती है कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ मेरे से 5-6 क्वेश्चंस पूछा। 1-2 में तो मैंने काफी टाइम खा गया। एक में एक्चुअली सैमसंग के टाइम पे एक बहुत टाइम खा गया। सो शायद उसी की वजह से उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। बाकी क्वेश्चंस मैंने ठीक ठाक सॉल्व कर लिए थे। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट इफ यू हैव अ प्रोजेक्ट। वो आपका टेक्निकल वाला पार्ट कम कर देगा, टेक्निकल क्वेश्चंस वाला। और मेन पार्ट ऑफ द इंटरव्यू विल बी फोकस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट। और उससे उनको ये भी पता चल जाएगा कि पार्ट मशीन लर्निंग में ऑलरेडी आता है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कंपनी, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर्क इन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। प्रोजेक्ट जो भी कराएंगे वो ऐसा ही होगा। तो अगर स्टूडेंट को पहले से ही ये सब आता है तो फायदा रहता है ना, तो उनका बहुत फायदा मिलता है। Yeah, there's a lot of exposure. I mean, अच्छा खासा एक्सपोजर। और बहुत लोगों को फायदा भी होगा शायद। मतलब जैसा तुम बोले कि वेरियस कंपनीज कैसा क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड ऑल दोस, आई मीन व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। एंड या यू हैव हैड अ लॉट ऑफ गुड एक्सपोजर देयर एंड नंबर। एंड हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो यार yeah, हाँ, yeah, anyone just you can raise your hand. You can also use the chat box, or just I can unmute you.
Yeah, so we'll be quick from now. Yeah, we can just 20-25 minutes will be just yeah. So anyone have queries, you can मासूम ने use the कुछ पूछा है, chat handle. Okay. importance of CS fundamentals. CS मतलब मासूम यार अपने आप को अनम्यूट करके एग्जैक्टली पूछ ले क्या पूछना है, मैं समझा नहीं. अच्छा, sorry. Masoom, can you please raise your hand? Okay, yeah. Hello. हाँ, Masoom, हाँ बोलो यस बोलो. मासूम. Hello. हाँ, यस Masoom, you मासूम. are Yes, audible. Yeah. You are audible. if you can tell about CS, That if you can speak your little voice is not about. clear. Okay, Masoom, you use the chat handle. CS fundamental, I guess. CS fundamental के बारे में पूछ रहे. CS CS fundamental as in subjects. कंप्यूटर साइंस का शायद फंडामेंटल पूछ रहे हैं. क्या मतलब जो सब्जेक्ट्स है उनके बारे में कितना नॉलेज होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट. Yeah, Masoom, please use the chat handle. I guess network issue, I guess, isn't audible voice. Chat handle. Okay, use chat. ये तो दोनों मतलब प्रोजेक्ट के लिए एमएल रिलेटेड कुछ करना है ऑलरेडी. अगर कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट या विषय. हाँ यस यस. Yeah, there is one more question, I guess. Yeah, we'll just at exact 6 we'll wrap up the meeting, so you can think about the queries and submit one by one. And there are a couple of more slides also we'll be going through. So like 25-30 minutes will be a good exposure, so that can कहा गया है. विषय अनम्यूट किया है. हाँ सॉरी. हाँ, एक अरुणेश ने एक क्वेश्चन पूछा है, मतलब अच्छा अच्छा मैटलैब प्रोजेक्ट के लिए एमएल रिलेटेड कुछ करना होगा अगर कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट लेके काम किया है तो डेवलपमेंट रिलेटेड अच्छा प्रोजेक्ट से भी सो कैन यू फॉरवर्ड दिस लिंक. व्हाट्स द क्वेश्चन. ओ अरुणेश अच्छा को अनम्यूट कर दे. अच्छा अरुणेश, आई एम अनम्यूटिंग यू, जस्ट यू कैन आस्क. आ गया. Push. Yeah, Arunesh, you can speak. Yeah, please, हेलो please, हेलो yeah, please. Yeah, you are audible. हेलो. Please. मतलब मेरा क्वेश्चन था कि आपने जो प्रोजेक्ट के बारे में आपने जो बोला कि मतलब हम लोग को क्या एमएल और एआई रिलेटेड ही कुछ करना है. अगर मतलब जैसे कि मेरा इंटरेस्ट फुल स्टैक डेवलपमेंट है और बहुत स्टूडेंट का इंटरेस्ट जैसे ऐप डेवलपमेंट पे है, तो हम लोग मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करूँ या ऐप डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करूँ और तो ये कर सकते हैं कि मतलब मुझे एमएल मतलब इंक्लूड भी करना होगा. मतलब एमएल मैंडेटरी है अच्छा मतलब कुछ ओके प्रोजेक्ट बिल्ड अप करने के लिए. नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. मैं बोल रहा हूँ आजकल जो कॉमन ट्रेंड में है एमएल सबको सीखना रहता है, जबकि फुल स्टैक डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है. सैमसंग ने इसको बहुत प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि उनका ज्यादा सब काम ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड ही रहता है. सो हाँ ये बिल्कुल तुम अपना कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हो. वैसे भी कोई भी सब्जेक्ट से हो, कोई भी टॉपिक से हो,
तुमको बस एक प्रोजेक्ट लेके जाना है, दिखा अपने सीवी में लिखना है तुमने ये काम किया है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं एमएल में ही करो, बस एमएल आजकल थोड़ा यार ट्रेंडिंग है, डीप लर्निंग सब सीख रहे हैं मतलब। और क्योंकि काफी कंपनीज, अगर मतलब मैं कह रहा हूँ कि एमएल में भी रहे, तुम बस लिख दो कि एमएल में ऐसे नहीं। फुल स्टैक और ये भी बहुत अच्छा है, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट जो भी करते हैं इनका भी बहुत फायदा है। मेरे एक दोस्त ने जिसका सैमसंग में इंटर्न है रिसेंटली, मतलब वो अभी भी उसका खत्म, सैमसंग का इंटर्नशिप थोड़े दिन पहले खत्म हुआ, और उसने बस एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट करी थी इंटर्नशिप से पहले, जब उसका सैमसंग में इंटरव्यू था। तो आई थिंक ऐसा जरूरी नहीं है कि एमएल में आपका प्रोजेक्ट हो, आपका फुल स्टैक में है, किसी का एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में है, जो भी है मतलब प्रोजेक्ट वो, तो क्या होता है कि यू कैन टॉक अबाउट इट इन द इंटरव्यू, वो लेंथ आपका शॉर्ट हो जाता है, तो उससे बहुत फायदा मिलता है। ताकि आप टेक्निकल क्वेश्चंस जितना कम हो सके फेस करो यार, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ ले कोई भी, एनी क्वेश्चन हाँ कैन हाँ बी हाँ आस्क्ड, राइट? सो हम्म, Yeah, Masum, I'm meeting you actually. Masum, I'm meeting you. Yes. Hello. Hello. Yeah, you are audible, please. Yeah, Hello. yeah, Masum, you are audible. Okay. So Vishay, I was asking, Vishal can you line speak पे about the importance of our fundamental subject like operating system, compiler design? जो सब्जेक्ट मतलब एकेडमिक्स में है, उनका कितना रोल होता है इन प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप? Vishal line में है. Okay, just a second. Okay, there is some network issue actually. Mm, well, just wait for a couple of minutes, 1 or 2 minutes, you'll be back. Uh, rest anyone, you can just think about the queries that you want to address to him, because we are going to end this meeting in short while, like 6:05 p.m. And yeah, I guess it was a good exposure for you. Yeah, Masum, are you audible? Yeah, I guess overall it was a good interaction with him, and uh, yeah, it sure was. okay, yeah, yeah. So yeah, like as I said, next 15-20 minutes use wisely as possible. And as we can have a few more. Actually, due to network issue, is not able to.
Just 30 seconds. Yeah, he's joining. Yeah, anyone, if any queries, you can just raise hand, use the chat box so that I can unmute you. Okay, yeah, Bishay, so he's back, I guess. Just unmuting you. So please raise your hand, can you please? Yeah, sorry guys. Just a minute, network issue. Okay, I guess you were answering something. Is it complete or? अरुणेश, यस, हाँ मतलब हाँ, फुल स्टैक डेवलपमेंट और एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होने से भी चलता है. इट डिपेंड्स हाउ यू प्रेजेंट इट और कितना नॉलेज है आपको उस प्रोजेक्ट में. जो भी प्रोजेक्ट आप लिखो, आपको एकदम थरो होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन अबाउट दैट प्रोजेक्ट. ओके. हर एक लूप होल की क्या प्रॉब्लम है वो बोलेगा. उसने ऐसा एडवांसमेंट इससे थोड़ा अपडेटेड वर्जन क्यों नहीं किया, तो उसका आंसर भी होना चाहिए. और इसमें एग्जैक्टली ये वाला चीज कैसे कंप्लीट किया, तो उसका आंसर भी होना चाहिए प्रोजेक्ट में. मतलब क्योंकि यार दैट्स द ओनली थिंग यू कैन राइट फ्रॉम योर ओन. ये वैसा है कि ये तुमको क्वेश्चन पहले से पता है तो तुम वो लिख के जाओ. तो तुम ऐसा कुछ लिखो जो तुमको सब कुछ आता है, वो जो भी पूछे तुम आंसर कर पाओ. प्रोजेक्ट इज द बेस्ट वे टू टेक कट योर टाइम इन द इंटरव्यू. अच्छा, हेलो. हाँ, यस. हाँ, विशाल, आपके मतलब कोई टिप्स या कुछ मतलब दे पाओगे, मतलब कहाँ से प्रोजेक्ट करना है, कि कुछ प्रोजेक्ट का आइडिया, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट करना है, कैसा प्रोजेक्ट करना है, थोड़ा बेसिक आइडिया, थोड़ा ब्रीफ में दे सकते हो? प्रोजेक्ट, हाँ, प्रोजेक्ट यार क्या होता है कि कोई बेसिक प्रॉब्लम आप ले लो, कहीं से भी कैसा भी प्रॉब्लम ले लो, और उसके बेसिस में आप कंप्लीट मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो यूजिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग. Okay. Anyone else, any queries? You can just ask so that I can unmute you when use the chat box. So Bishay, as I said, presently, अच्छा वो बोल दे क्या अभी जो internship कर रहे हो presently, Bishay? हेलो. Yeah, you are audible, Bishay. या हाँ, मैं यार आई एम करेंटली इंटर्निंग एट एक्सेला एडवाइजरी. इट्स अ कंपनी एट बॉम्बे, जिसका पेरेंट वहाँ पे है बॉम्बे में. उसमें बेसिकली इट इज अ ट्रेडिंग कंपनी. वो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, मैनुअल ट्रेडिंग, ये सब चीज़ों से डील करती है. मतलब उसमें क्या होता है, आपको एनालाइज करना होता है डाटा सेट से कि पिछले जो ट्रेंड है स्टॉक मार्केट के, वो यूज करके आपको प्रेडिक्ट करना है कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी वुड बी यूजफुल, सूटेबल, सो दैट यू कैन प्लेस योर बेट्स. आप अपना स्टॉक्स को लगा पाओ कि आपको बहुत 5 साल का डेटा है कि ये इतने प्राइस तक जाता है, इतने पे ड्रॉप करता है, एंड हर दिन का डेटा है, दिन में कितने फ्लक्चुएशन है उसका डेटा है. एंड वो सब डेटा को यूज करके यूजिंग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आपको कोई ऐसा स्ट्रैटेजी करना है, मतलब डिवाइस करना है कि आप कितने प्राइस पे आए आपको बाई कर लेना है या सेल कर देना है, और कितने पे आए तो उसको वाइस वर्सा कर देना है. उससे क्या होता है कि अब आप प्रेडिक्ट कर लोगे तो कंपनी को पैसे कमाने को मिलेंगे. अब आप कोई अच्छा डिवाइस वो कर लोगे, मतलब कोई अच्छा स्ट्रैटेजी डिवाइस कर लोगे तो काम आएगा कंपनी को. दे कैन यूज इट टू पुट देयर मनी ऑन. एंड एक्चुअली यही सिखा रहे हैं. ये थोड़ा आपको मैनुअल ट्रेडिंग का वो देते हैं, एक्सपोजर देते हैं. ये आपको बैठने देते हैं मार्केट के सामने कभी कभी पूरे दिन, कि आप देखो, नोटिस करो कि ये कैसे मूव करता है. कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे देंगे और आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे मूव करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. उस हिसाब से आपको ज्यादा आइडिया लगता है. तो मैनुअल ट्रेडिंग भी इम्पोर्टेंट है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग भी इम्पोर्टेंट है. तो दिस इज अ कंपनी व्हिच डील्स विद दैट.
तो मैं मेरा करंट इंटर्नशिप उसमें चल रहा है. एंड आई वाज आल्सो ऑफर्ड अ पीपीयू विद देम, प्री प्लेसमेंट ऑफर. उन्होंने मुझे 1 महीने पहले 2-3 हफ्ते पहले ऑफर किया कि इफ आई वांट आई कुड जॉइन देम इन आफ्टर आई कंप्लीट माय कॉलेज. सो it's a good company and it's a good internship. Okay, so any queries like you can use the chat box. We'll end the meeting like 5-6 minutes, and you can use the chat box or you can raise your hand so that I can unmute you. Okay, Bisham, I guess बढ़िया session रहा है. I guess interesting है दिन. हाँ ठीक है, बढ़िया था यार. हाँ मतलब क्योंकि कल at an instant जो है मतलब on the spot जैसे plan किया गया है कल रात मतलब जैसे. तो हाँ यार बढ़िया था. हाँ. Okay. So anyone, I mean, you can use the chat. Anybody. Yeah, anybody. Okay, Masum is giving thanks. Okay. Okay. Yes. I guess yeah. Yeah. So anyone else, if you want, you can ask any queries, anything. I guess it was interesting for you. Like, yeah. Okay. Okay. Yeah. Welcome everyone. Yeah. Okay. Yeah, Bishop will just in 2 minutes we'll just yeah. I guess I guess everyone just had a like I mean interesting session. I mean they enjoyed because ऐसे मतलब जो है ऐसे बैठे हैं. I hope यार मतलब ठीक हुआ वो अपना. मेरे को तो यार मुस्तफा ने बोला था, मैं उसको मना भी क्या ही करूँ. मुस्तफा ने बोला यार इंटरैक्टिव सेशन कर लेंगे. मैं बोला ठीक है, अपनी बातें भी हो जाएंगी. एंड ये ऐसा दिमाग इसका चलता रहता है, यूट्यूब वीडियो भी बनाता है यार. सो आई थॉट लेट्स डू इट. मैं सोचा ठीक है 1-2 घंटा जो भी टाइम लगे. और यार मेन ये है, अगर आप लोग अभी जॉब ढूंढ रहे हो तो कोडिंग करना इम्पोर्टेंट है अगर ऐसे फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हो, क्योंकि मेन फर्स्ट फेज है कि आपको अच्छी कोडिंग आनी चाहिए. जितनी अच्छी कोडिंग होगी उतना ज्यादा एज होगा. अब उसके बाद है अगर आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, इंटर्नशिप जो भी जॉब के लिए जा रहे हो तो प्रोजेक्ट होना तो बहुत जरूरी है. इंटर्नशिप में उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर उतना ही ज्यादा प्रेशर आपकी कोडिंग में आ जाएगा. और प्रोजेक्ट कर लो, ये टाइम है अभी. और ये कोविड सिचुएशन है यार, आप घर बैठे बैठे कुछ सोच के कोई भी प्रोजेक्ट कर लो. अभी रिसेंटली मैंने और मेरे दोस्त ने इंटर्नशिप से पहले एक प्रोजेक्ट किया, मतलब कि क्रॉप डिजीज प्रिडिक्शन करके. मतलब क्रॉप के इमेजेस हम कंप्यूटर को देंगे, वो हमें बताएगा कि उसमें डिजीज है कि नहीं, और डिजीज है तो क्या डिजीज है. सो मतलब ऐसे ही यू कैन कीप डूइंग थिंग्स. कुछ भी मन में आए, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप इंटरनेट में ढूंढ लो, आपको लगता है आप उसके डेटा सेट जुगाड़ पाओ. मैं एमएल टाइप थोड़ा बता रहा हूँ, सॉरी, मेरे को उसका ही ज्यादा आइडिया है, बाकी का ज्यादा आइडिया है नहीं. तो डेटा सेट अगर आप उसके जुगाड़ पाओ और आपको लगता है कि आप कोई सोल्यूशन डिवाइस कर लोगे, तो इट्स रियली गुड. एमएल में प्रोजेक्ट करना उतना हार्ड भी नहीं होता, और प्रोजेक्ट रहे तो अच्छी बात है. प्रोजेक्ट रहना भी चाहिए, आप जॉब के लिए जाओगे. आईटी का एक फायदा ये है कि कंपनीज आपके कॉलेज में आके जॉब ऑफर कर देती हैं. मतलब थोड़ी अच्छी कंपनीज भी आती हैं, अच्छा पैकेज भी देती हैं. सो इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट. एंड ऐसा ही अब ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़े तो यू हैव टू बी मोर प्रिपेयर्ड. जितना ज्यादा नॉलेज हो उतना अच्छा है. एंड बस यार प्रोजेक्ट करो, कोडिंग so करो. actually my battery is also running. ये ऑफ है भाई. ऑफ कर दिया. क्या कर रहा है? Okay, so I guess it was an interesting session. Everyone just enjoyed it, I guess. Yeah, Abhishek, it was nice talking to you. Like after a long time, like it was a thank you. Same. It was a long session. Like we can. I mean, in future also we can look. I mean, in free time. I mean, yeah. So it was overall I guess we are going to just wrap up the meeting, and it was I guess a good one, like a good interactive session, expositive session. And so goodbye everyone. So let me give a chat message to everyone just. Everyone welcome. Okay, welcome.
Okay, yeah, Vishay. Yeah. Yeah, thanks for coming. Yeah, bye. Yeah, Yeah. Bye. yeah, everyone, goodbye. Yeah.